Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you are doing great. And today's topic is Derek Walcott's A Far Cry from Africa. ओके, तो इस टॉपिक को हम 30 एमसीक्यूज के हेल्प से समझेंगे। इसके अलावा भी हमारा प्रैक्टिस सेट जिसमें हम पूरे एलटी ग्रेड के सिलेबस को कवर कर रहे हैं वो भी चैनल पे मौजूद है। आप जाके उसको भी विजिट कर सकते हो। साथ में ये जो टॉपिक्स हम करा रहे हैं ये मे बी क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगे क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो एलटी ग्रेड के लिए। बट ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका वाज रिटन बाय वोले सोयिंका, डेरिक वॉलकॉट, चिनुआ एचबी और कामुआ ब्रैथवेट। सो यू नो दिस पोएम इज रिटन बाय डेरिक वॉलकॉट. So, Derek Walcott was a poet from Nigeria, Kenya, St. Lucia, Caribbean, or Jamaica. So, he's a St. Lucian poet or Caribbean poet. Okay. Now, A Far Cry from Africa was first published in 1958, 1960, 1962, or 1965. So, it was first published in 1960. The poem deals primarily with environmental degradation, colonial conflict and divided identity, religious hypocrisy, or migration and exile. This poem deals with colonial conflict and divided identity of Derek Walcott or of poet. The historical event that inspired the poem is Mau Mau uprising in Kenya, Boer War in South Africa, Rwandan genocide, or World War II. So this poem is inspired by Mau Mau uprising in Kenya. The Mau Mau uprising took place in 80, 1890s, 1910, 1950s or 1970s. So it took place in 1950s. The poem expresses Walcott's conflict between faith and doubt, European and African heritage, past and future और नेचर एंड सिविलाइजेशन. सो ये जो पोयम है बेसिकली ये कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ये एक्सप्रेस करता है. सो दैट इज यूरोपियन एंड अफ्रीकन हेरिटेज. द फ्रेज अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका suggests physical distance only, emotional and cultural distance, a cry of joy, a political revolution. सो अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में जो पोएट है वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो काफी मिक्स्ड है. मदर कैरिबियन है, फादर यूरोपियन है. तो वो और उसके साथ वो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, साथ में उसको इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर भी पसंद है. तो वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में है. सो यहाँ पे एक जो इमोशनल और कल्चरल डिस्टेंस वो किसी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको वो दिखा रहा है. ये टॉपिक जो ये जो टाइटल है. What poetic form does the poem follow? Whether it is a sonnet, lyric free verse, ballad, or will O'Neill. So it is a लिरिक फ्री वर्स. मीन्स इसमें लिरिक्स नहीं है, राइम नहीं है, रिदम नहीं है. वो एक नाउ जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आप जाते हो, अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर, बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में. सो उसमें जो पोएम्स या वर्क्स जो होते हैं काफी लिटरल वे में लिखे जाते हैं. ठीक है, राइम रिदम पे उतना फोकस नहीं रह पाता है क्योंकि वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज रहती है इंग्लिश. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the poem opens with an image of a wounded lion, blood and violence in the wilderness, African dancing, British soldiers marching. So, blood and violence in the wilderness is the opening image in the poem. A wind is ruffling the towering petal of Africa is an example of simile, metaphor and personification, irony or hyperbole. सो यहाँ पे विंड जो है वो रफल कर रहा है.
तो ये एक थोड़ी सा पर्सोनिफिकेशन भी है. Downy petals, that is metaphor. So यहाँ पे दोनों चीजें दिख रही हैं आपको. Now the phrase corpses are scattered through a paradise conveys. Now यहाँ पे paradise अफ्रीका को कहा गया है और corpses are scattered through means जो bloodshed हुआ, जो violence हुआ है पूरे अफ्रीका में, उसकी बात कर रहा है. So conveys peace in Africa, irony of violence in the natural Eden, celebration of nature or a metaphor for colonization. So it is the irony of violence in the natural Eden, जो कि अफ्रीका को कहा जाता है. Next question is, the poem compares Africa to a wounded lion, paradise destroyed, field of bones और all of above. So ये सभी चीजों से ही इसको कंपेयर किया जाता है कि वो एक wounded lion की तरह है, ठीक है, जो कि बदला भी लेता है. माओ माओ अपराइजिंग में यही बात कही गई. नाउ एक ऐसा पैराडाइज अफ्रीका को माना जाता है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया कॉलोनाइजर्स ने. हाँ, फील्ड ऑफ बोन्स, इतने लोगों को मारा गया है कि वो पूरी धरती पे बोन्स ही बोन्स दिखते हैं. so these are the comparison for Africa. The line statistics justify and scholars sees criticizes politicians, Western intellectuals and colonial rationalization of violence, African rebels or religious leaders. So this is for Western intellectuals and colonial rationalization of violence. दोनों की बात कही गई है इसमें. The poet refers the gorilla and the superman to symbolize primitive Africa and civilized Europe, soldiers and scholars, African tribes and colonial settlers, and two animals in conflict. So it is for primitive Africans, that is gorilla, and civilized Europe, that is Superman. The gorilla is the in the poem stands for Mau Mau rebels, British colonizers, the poet himself, or nature's power. So it is for Mau Mau rebellions जो थे उनके लिए word use किया गया gorilla. हाँ, the Superman symbolizes the poet's conscience, colonial arrogance and European dominance, African nationalism or Christian faith. So it is for colonial arrogance and European domination. Cornell of Carrion is an example of oxymoron, metaphor and alliteration, simile or paradox. So यहाँ पे metaphor भी है और alliteration भी है. The poem's central theme is joy of independence, clash of cultures and moral dilemma of mixed heritage, African nationalism or religious salvation. So the central theme of the poem is a clash of cultures. एक तरफ यूरोपियन कल्चर है और अफ्रीकन हेरिटेज या अफ्रीकन कल्चर है. दूसरी तरफ जो एक मोरल डिलेमा पोएट के साथ चल रहा है कि उसके पास मिक्स्ड हेरिटेज है. उसकी मदर जो है एक अफ्रीकन है और फादर जो है एक यूरोपियन है, और उसके पास दोनों कल्चर की अपने अपने चीजें हैं, इंपॉर्टेंस है, वैल्यूज हैं. तो वो कहने का एक मोरल डिलेमा में चल रहा है कि वो किसको सपोर्ट करे. The tone of the poem is best described as joyful and proud, angry, bitter, and conflicted, romantic and nostalgic, satirical and playful. So it is very much, there is a anger, bitterness, and conflicted identity is there in the poet or in the poem's tone. You can find it. What does the phrase "the white child hagged in the bed" depict? So, the dream imagery, the brutality of colonial violence, a metaphor for rebirth or satire on innocence. So, it shows the brutality of colonial violence कि वहां पे कैसे क्रिश्चियन चाइल्ड जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, यूरोपियन चाइल्ड जो कि सो रहे होते हैं बेड में और माओ माओ अपराइजिंग में उनको सोते ही मार दिया जाता है. तो दोनों तरफ से वायलेंस हुआ है और इस ब्रुटैलिटी को पोएट जो है कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है. The line, the violence of beast on beast is read as natural law means animal fight to survive, human justify violence as natural, Africa is a jungle, God approves of war. So it is human justify violence as natural. Now
यहाँ पे लिखा है ना, वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट, कि अफ्रीकन जो रिबेलियंस थे माओ माओ मूवमेंट्स वाले, वो कहते कि वो यूरोपियन जो है बीस्ट हैं। हाँ, और एक वायलेंस जो हम कर रहे हैं वो जस्टिफिएबल है। ठीक है, वहीं पे यूरोपियन भी यही चीज कहते हैं कि वो बीस्ट हैं, इसलिए हम उनके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं। तो ये कहाँ से एक नेचुरल लॉ इसको बताया जा रहा है? तो वो दोनों ही लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है। अफ्रीकन पीपल्स जो कि यूरोपियन को के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं, और यूरोपियन पीपल जो कि अफ्रीकन के ऊपर वायलेंस किए हुए हैं। सो दिस इज देयर। The poet calls English language and culture a curse and inheritance, joyful gift, political tool only, neutral element. So he says it is a curse and inheritance. ठीक है, एक तरीके से वो कर्स भी है कि उसको मिला है और लोग उसको अपने से जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके ही लोग। और दूसरा कि उसको जो भी हेरिटेज मिला है वो उसी से मिला हुआ है, लैंग्वेज और कल्चर जो भी वो आज एक्सप्रेस कर पा रहा है वो उस लिटरेचर की वजह से ही। तो दोनों ही चीजें उसको मिली हैं इस लैंग्वेज से। Walcott's dilemma as a poet is best expressed in which of these lines? ठीक है, वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट में है कि वो किसको चूज करे, वो किस लाइन्स में दिख रही हैं? हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव द गोरिल्ला wrestles with the superman, a wind is ruffling with the tawny petals of Africa, or statics justify an scholar sees. सो ये जो इसका मोरल डिलेमा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव। ठीक है, कि मैं अफ्रीका से दूरी कैसे बना लूं, कैसे जी लूं। ठीक है, मैं यूरोपियन जो लैंग्वेज है, लिटरेचर, उसको कैसे छोड़ दूं। तो एक जो एक डिलेमा में चल रहा है वो इस लाइन से हमको देखने को मिलता है। द पोएम एंड्स विथ अ call for political freedom, question expressing inner conflict, prayer for peace, vision of hope. So the poem ends with the question expressing his inner conflict, कि पोएट जो है उसके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो किसको सपोर्ट करे, किसके साथ जाए। हाँ, ये इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। I who am poisoned with the blood of both refers to, देखो यहाँ पे वो यही लाइन लिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है या इसका क्या मतलब है। सो द पोएट्स मिक्स्ड racial identity, African and European, a literal illness, colonial guilt और cultural pollution. सो एक मिक्स्ड आइडेंटिटी जो है पोएट की, कि मदर अफ्रीकन है, फादर जो है यूरोपियन है, वो जो ब्लड है दोनों का, वो उसको पॉइजन कर रहा है कहीं ना कहीं। वो किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वॉलकॉट मीन बाय डिवाइडेड टू वेन? that is split loyalty between Africa and Europe, internal disease, desire for unity or bloodshed in war. So it is his split loyalty between Africa and Europe, कि उसका जो ब्लड है वो दोनों का है। अब वो उसकी लॉयल्टी किसके लिए है, वेदर इट इज फॉर अफ्रीका और फॉर यूरोप। हाँ, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पोएट के साथ चल रहा है हमेशा। द पोएम्स इमेजरी इज मेनली ड्रॉन फ्रॉम, जो इमेजरी इसमें यूज हुआ है पोएम में, वो कहाँ से लिया गया है? वेदर इट्स फ्रॉम अर्बन लाइफ एंड मशीन्स, नेचर एंड वायलेंस, रोमांस एंड ब्यूटी, रिलीजन एंड फेथ। सो इट इज टेकन फ्रॉम नेचर एंड वायलेंस। यहीं से दोनों इमेजरी आपको, मैक्सिमम इमेजरी यहीं से देखने को मिल रही है कि वॉर की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, अफ्रीका और यूरोप की बात हो रही है, तो वो नेचर और वायलेंस से ही मेन जो जो इमेजरीज लिए गए हैं वो वहीं से लिए गए हैं। विच पोएटिक डिवाइस डोमिनेट्स द पोएम? ठीक है, पूरे पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं? वेदर इट इज मेटाफिजिकल कंसीट, आयरनी एंड पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन एंड विविड इमेजरी, और एलिट्रेशन एंड राइम। तो मेटाफिजिकल पोएट तो है नहीं कि मेटाफिजिकल कंसीट देखने को मिलेगा, आयरनी और पैराडॉक्स भी नहीं है, एलिट्रेशन बहुत कम है, राइम तो है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, तो बचा क्या? पर्सोनिफिकेशन एंड विविड इमेजरी। Now, the final tune of A Far Cry from Africa can be described as reconciled and peaceful, tragic and unresolved, hopeful and optimistic, or indifferent and detached. So it is tragic and unresolved. ठीक है, कि पोएट कंफ्यूज ही रहता है और एक ट्रेजिक
उसके साथ। ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। आप प्रैक्टिस सेशंस जो हमारे चल रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें पूरे एलटी ग्रेड के सिलेबस को हमने कवर किया है। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।